اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ جی السلام علیکم، کیا حال ہے میری یوٹیوب فیملی؟ خیر وافیت سے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ موڈ مزاج کام روٹین دوست احباب سارا کچھ فٹ فاٹ ہے؟ اللہ پاک آپ کو صحت دے، آمین۔ آپ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنی تھی آج، چونکہ منڈی تو بند ہے نا یار، تو جب منڈی بند ہے تو پھر ہم نے آپ کو منڈی کے حوالے سے کیا ایسی انفارمیشن ہے جو دینی ہے۔ جنرل سی کچھ باتیں ہیں، کچھ کنفیوژن ہیں، کچھ نئے لوگ جو ایڈ ہوئے ہیں یوٹیوب میں ہمارے ساتھ، نیو سبسکرائبرز، ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ اور باقی تھوڑا سا پورٹ فولیو مینجمنٹ جو کہ ریڑھ کی ہڈی ہے اس کام میں، اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں کہ آپ کی پورٹ فولیو ڈائیورسیفیکیشن یا پورٹ فولیو مینجمنٹ کیا ہوتی ہے۔ ڈائیورسیفیکیشن کا مطلب ہے کہ آپ اپنے فنڈ کو ایک جگہ پہ اسٹاک نہ کریں، اس کو 2-3 چیزوں کے اندر جہاں پہ آپ کو اپرچونٹی دکھائی دیں آپ اس کو وہاں پہ لگائیں۔ مین انٹینشن ہماری مزدوری نکالنا ہے کہ جہاں سے ہمیں روزی ملے اللہ پاک کی طرف سے، اس کو ہم وہاں سے اٹھائیں، ٹھیک ہے۔ اپرچونٹیز جہاں پہ ہمیں ملیں، اپرچونٹیز کو اویل کر کے کاش اگر مگر والی سٹوری سے نکل کے بیٹھیں۔ دیکھیں میں اس ٹائم پہ جو کام کر رہا ہوں نا، میرے ڈیفرنٹ کام ہیں جو میں پرفارم کر رہا ہوں، اور کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں جو مجھے جانتے ہیں، پرسنلی جانتے ہیں، تو مجھے کہتے ہیں یار اتنے زیادہ کاموں میں ٹانگ اڑائی ہوئی ہے، کہیں سے بھی پرفیکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں اس اینگل سے دیکھتا ہوں، میں بائی نیچر ایک ملٹی ڈائریکشن پرفارمر ہوں اینڈ ماسٹر آف نن آلسو۔ میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں، جی جدوں ایج گزر جاندی نا، ایج گزرن تو بعد جتنے بھی سینئرز لوگ یہاں میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ میری بات کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ جو نیو ہیں یا جن کو ابھی حالات و واقعات کی سختیوں کا اندازہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا جو ابھی گرومنگ ٹینیور کے اندر ہیں، تو وہ شاید اس چیز سے اتفاق کم کریں۔ دیکھیں، ملٹی ڈائریکشن بندہ جو بھی ہوتا ہے وہ ماسٹر آف نن تو ہے، کسی ایک چیز میں ایکسپرٹ اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ کیونکہ محمد علی باکسر نے بڑی زبردست بات کی تھی جب اس کا میچ لگا تھا ایک مخالف پلیئر کے ساتھ، تو اس کی جب یہاں پہ آ کے محمد علی کو بتا رہے تھے کہ فلانا باکسر آپ کا اس کے ساتھ میچ ہے، وہ تو 1000 قسم کے پنچز مارتا ہے، تو محمد علی نے کہا مجھے اس شخص سے ڈر نہیں لگتا کہ جو 1000 قسم کے پنچز مارتا ہے، مجھے اس شخص سے ڈر لگتا ہے جو 1000 دفعہ ایک ہی پنچ کی ٹرائی کرتا ہے۔ بڑا ڈفرنس ہے۔ اور ماسٹر آف نن کی بات تو ہے، لیکن جہاں جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، یہ اب گراؤنڈ ریالٹیز وہ ہو گئی، ایک کتابی بات ہوگی، موٹیویشنل بات ہوگی۔ اگر آپ سنگل ڈائریکشن میں کام کر رہے ہو نا، جان مارو، جان لگا دو کام میں، باقی جو ریزلٹ ہے یا جو بھی اس کا آؤٹ کم نکلنا ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں بعد میں آتی ہیں سامنے۔ اس ٹائم کا جو ڈیسیژن ہے اس کو مضبوطی سے، جو ڈیسیژن کرو اس کے اوپر مضبوطی سے ڈٹ جاؤ، بس یہ سٹوری ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں پہ غیر یقینی صورتحال بہت زیادہ ہے، تو ہم کسی ایک چیز میں اپنے فنڈ کو نہیں یار رکھ سکتے، یقین مانو۔ چھوٹا چھوٹا پروفٹ کر کے کسی ایک ہی جگہ سے ہمیں اتنا بڑا پھر اس کے اندر لاس دینا پڑ جاتا ہے، اور وقت بھی بہت ضائع ہو جاتا ہے، فنڈ بھی پھنس جاتا ہے، ذہنی سٹریس کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ بھائی جان اپنے پورٹ فولیو کو ڈائیورسیفائی کریں۔ ڈائیورسیفائی کا مطلب یہ ہے کہ 2 3 4 5 کاموں کے اندر آپ اپنی انویسٹمنٹ کو تھوڑا اور جہاں پہ اپرچونٹی نظر آئے وہاں
ठीक हो गया। चूँकि ये मेरा जो चैनल है ये है चुगताई बाबा के नाम से, ठीक है, और इधर मैंने गोल्ड से रिलेटेड प्योर जो कंटेंट है या जो नीश है वो गोल्ड से रिलेटेड नहीं है। मेरी बहुत सारी वीडियोस में आपने गला मंडी भी देखी होगी और गोल्ड एंड सिल्वर भी देखा होगा, ठीक हो गया, और रियल स्टेट से मुतालिक कोई सौदे जो हमने उठाए थे बेचे थे वो भी वीडियोस देखी होंगी। भाईजान काम सारा लोहा हमने उठाया था, ठीक हो गया, लोहा हमने जब उठाया था तब भी मैंने बताया था, जो पुराने व्यूअर्स हैं उस चीज़ को जानते हैं। लेकिन ये है कि हमारे साथ ज़्यादा जो ऑडियंस इस टाइम पे अटैच है वो सारी गोल्ड और सिल्वर के मुतालिक है। तो इस वजह से हमने इस चैनल को एज अ गोल्ड एंड सिल्वर एनालिसिस ज़्यादातर इसको प्रेफरेंस दी हुई है आप लोगों की सहूलत के लिए, ठीक है भाईजान। जहाँ पे गोल्ड और सिल्वर हमारा वक्त ज़ाया करता है वहाँ हमें एक दूसरी चीज़ पोटेंशियल गेंस दे जाती है, बजाय हम उसी चीज़ के अंदर बैठे रहें। अब जहाँ तक गोल्ड और सिल्वर की मैं आपको अच्छा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का अंदाज़ा हो गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, आपका जितना फंड है उसका 70%, कीप इट इन योर माइंड, पूरे फंड का 70% आपने ये रख देना है गोल्ड के लिए, ये जो 30% है ये रख देना है सिल्वर के लिए। नंबर 1 यहाँ पे कैटेगराइज करना है। ये 70% आप 10 लाख रुपए का काम करते हो, कितना, 10 लाख रुपए का, तो 7 लाख रुपए जितना फंड आपने गोल्ड के अंदर मंदा तेजी के लिए रखना है। 3 लाख का फंड कहाँ रखना है जी, सिल्वर में। अब आ जाओ इस 70%, इस सिल्वर को रख दो, अब इस 70% को एक्सपेंड कर लेते हैं, अगेन 100% बना लेते हैं। यहां पे आके जो 60% बचता है इस फंड का, ये आपने फॉर द लॉन्ग टर्म इसको आपने यहां पे रखना है, ठीक है। 60% आपको फॉर द लॉन्ग टर्म चला जाएगा, और लॉन्ग टर्म में आपका जाएगा 3 से 5 साल का पीरियड। बाकी जो आपका बच जाता है 40%, उसमें से मौके की मुनासबत के हिसाब से कुछ क्वांटिटी आप मिड टर्म में रखेंगे, समझ आई है ना, जो कि 4 से 6 महीने है, और कुछ रखेंगे शॉर्ट टर्म के लिए या डे ट्रेड के लिए। डे ट्रेड का मतलब होता है 5-7 दिन में ऊपर नीचे, 5-6 दिन में ऊपर नीचे उसको खेलना। तो ये जो है फंड 40% ये हमारा है खर्चा सिस्टम, खर्चा निकालने के लिए, मजदूरी बनाने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए। ये हैवी फंड है, इसको लॉन्ग टर्म रखो। और गोल्ड में हमेशा वो फंड इस्तेमाल करें, मैं आपको वार्न कर रहा हूं यहाँ पे, गोल्ड में हमेशा वो फंड इस्तेमाल कीजिएगा जो आपके कारोबार का हिस्सा ना हो। बात एक बंदा है वो कहता है सर मेरी कपड़े की दुकान है, कपड़ों का तो आजकल सीजन है, ईद के बाद कपड़ों में थोड़ा सा काम हमारा स्लो हो जाता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस दफ़ा जो एग्जिट मारूं सीजन लगाने के बाद, तो जो फंड है उसको मैं गोल्ड के अंदर लगा देता हूँ, तो फिर जैसे ही फिर बकरी वाली ईद पे फिर काम खुलेगा, 2 महीने के लिए फंड अवेलेबल है, तो इसके अंदर मैं लगा देता हूँ। तो आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ हरगिज नहीं। जो कारोबार का पैसा है भाई कैश रखना भी सीखें, कैश अपने पास दराज में रखना सीखो, कैश को होल्ड करना सीखो। जो जिस चीज का फंड है, अब जिस तरीके से हमने सिल्वर का फंड पहले कैटेगरी बनाई थी, उसमें सिल्वर का फंड 30% था, वो मेरा अभी तक पड़ा है। हालांकि मैं गोल्ड में आपको बता रहा हूं कि मैं उसका फुली लोडेड हूं और मेरे पास फंड मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि ऐसे गंगले हो गए, इसका मतलब यह है कि जो हमने पेपर वर्क पे इसकी परसेंटेज बनाई हुई थी कि इतना तक हम गोल्ड में यूटिलाइज करेंगे, उससे ज्यादा बढ़ के नहीं करेंगे। अब हालात वाकयात जिस किस्म के भी हो जाए, हमने उस परसेंटेज को नहीं बढ़ाना, और ना ही ये वाला फंड उठा के हमने इधर डालना। ये गलती करते हो आप लोग। फिर ये वाली जो अपॉर्चुनिटी आती है, आपके पास फंड नहीं होता, आपका फंड यहाँ लगा होता है, समझ आई है ना। ये तो मैं सिर्फ आपको 2 चीज़ों की जो मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पोर्टफोलियो को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। और जिन लोगों के 5 से 6 काम है, वो अपने टोटल जो उनकी इक्विटी है, टोटल जो उनका फंड है, जो उनकी हैसियत है, इस्तात है, उसको फिर हमने कैटेगराइज वाइज
सब के अंदर। और इसी तरीके से देखो, कारोबार जो होता है ना, इसके अंदर आपको कहीं तगारी, मजदूरी, पसीना, धूप, समझ आई है, जी सर, आ सर, वाह सर, कुछ नहीं करना। कारोबार में सिर्फ आपकी माइंड की गेम है। साफ सुथरे कपड़े होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी होती है, आपकी पूरी ड्रेसिंग होती है। आप अपने काम के साथ अगर मुखलिस हो ना, उसमें जान जी मारना जानते हो, बस फिर आपका काम मोबाइल के ऊपर ही होता है। फंड आपके चल रहे हैं, मुंशी हैं, वो आपका खाता लिख रहे हैं, वो अपनी सैलरी लेते हैं। टीमें बनाओ, टीमें बना के काम करना सीखो। थोड़ा फंड है, खुद पहले अपने आप को ट्रेंड करो, और जो भी नया काम स्टार्ट करो अपने हाथ से करो। मैं ये नहीं कहता, अक्सर लोगों का मैंने ये भी देखा है, वो कहता है उस्ताद जी जिस काम में आपको महारत नहीं है ना, हर काम में पंगा नहीं लेना चाहिए। उस्ताद जी जिंदगी ते है कि खुदा दे बंदे हो, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਥੋੜੇ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਬਨਫਸੇ ਨਫੀਸ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਹਿਨ ਬਣਾ ਲਓ ਕਲੀਅਰ, ਹਰ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ। ਨੁਕਸਾਨ, ਵਕਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਨ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਵਰਸ, ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਐਬਜ਼ਾਰਬ ਕਰੋ, ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੇਬਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਖੁਦ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਅਰਸਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ, 6-8 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। अगर तो ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਟੀਮ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟੀਮ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅੰਧਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਪਕੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, बुढ़ापे के अंदर बह के मैं काश अगर मगर चूंकि चुनाचे इस किस्म के अल्फाज तो पनाह मंगदा। मैं हुण भी मेरी जड़ी बेस्ट दुआ है ना, वो तो यही है ना, रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़ क्यों आखिरजनी मुखरजा सिद्क़ क्यों वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाह सियां जेड़े काम है जी सानू पाओ ना सच्चाई दे नाल, ते जेड़े काम जो कढो ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਮਦਦਗਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਇਨਹਸਾਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਸ਼ ਅਗਰ ਮਗਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ नहीं, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ऐसे डिसीजनस ने कारोबार तो हट के यार कारोबार तो ये हुण जरूरी है ना करने, इनू रख दे। पूरी बाकी जिहड़ी जिंदगी है कारोबार तो 1% 2% इंपॉर्टेंस रखता जिंदगी के मामला दे। बाकी जिहड़ा 95-90% तुहाडा जिहड़ा बचदा है वो सारे हर दिन दा हर लम्हे दा डिसीजन है, हर लम्हे दा डिसीजन। उस डिसीजन दे उत्ते रब को दुआई मंगते जाओ। काम सारे तुसां करने ने, हर काम तुहाडे वास्ते बने है, हर काम काश अगर मगर तो निकलो। समझ आ गई है ना। ते दलेर इंसान जड़ा है ना, जड़ा कि दलेर इंसान है वो उस्ताद जी मैं तुहानूं दसां, कुछ लोग होंदे ने साहिल दे उत्ते खड़ के ताड़ी मारदे ने, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, नुकसान करते हैं, नफ़े करते हैं, लेकिन विच वड़ के गहरा ही नाप के आते हैं। बहुत सारे काम मैंने ज़िंदगी में ऐसे किए हैं कि जितने मैंने उसके अंदर नुकसानात किए हैं, जो यहाँ पे मेरे वीडियोस देख रहे हो भाईजान, हो सकता है आपका टोटल कैपिटल भी उतना ना हो जितना मैंने अपनी ज़िंदगी में नुकसान किए हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ। और जो बंदा ये कहे मैंने आज तक नुकसान नहीं किया, फारिग है। जहाँ पे मैं आपका गोल्ड और सिल्वर का टीचर हूँ ना, इस गोल्ड और सिल्वर के अंदर जितनी मारें मैंने खाई हैं, शायद बहुत कम लोगों ने वो खाई हो। कम लोग, मैं ये नहीं कहता उतनी मार किसी ने नहीं खाई, मेरे पास तो उतना फंड ही नहीं है, मैं आपको बताऊं। बहरहाल मारे खाने
का जो जोश है वही आपको हर काम में स्टेप फॉरवर्ड करता है, वही आपकी दलेरी है। मार खाने का शौक, ये कैसी बात है? ये समझने के लिए जो अपना जहन बना के काम करता है बंदा कि भाई इसमें मुझे मार लगेगी, अगर उसमें उसको मार लग भी गई तो केड़ा फर्क पैदा, समझ आई? गोल्ड और सिल्वर की थोड़ी सी बात कर दें, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। गोल्ड को आपने अनटच पोजीशन में 3-24 तक इसको होल्ड करना है। सिल्वर के अंदर 30% एंट्रीज आपने कंफर्म करनी है और हर 5 दिन बाद थोड़ा थोड़ा फंड आपने सिल्वर के अंदर यूटिलाइज करना है। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, मेरी बात याद रखिएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले ये लेवल्स नहीं हैं, ये लेवल्स हैं लोकल मार्केट की मैनिपुलेशन और इंटरनेशनल मार्केट की मैनिपुलेशन और ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो इस टाइम में चेंज हो रहे हैं, वहां से एक अपॉर्चुनिटी निकाल के एक झटी सिस्टम है जो हमारे पास इस टाइम पे अवेलेबल है और उससे हमने फायदा उठाना है। गोल्ड को दिल से लगा के नहीं बैठ जाना 3-24 3-22 के घरों में जब ये पहुंचे कि नहीं होड़ तो बस उतरे चले, वहां पे डिसीजन मूवमेंट है, ठीक है? उसको हम उस टाइम पे देखेंगे। आज थोड़ा सा हमने डिफरेंट बातें आपसे की हैं। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय वुल्व्स स्टे ब्लेस्ड। होए होए आज उस्ताद जी गल्लां केरियां करनियां सी ते हो केरियां गईयां। बहरहाल इंपॉर्टेंट है यार गल्लां। माइंड सैट ही है ना इंसान दा, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪਟੇ। घाटा भी मैंने जाने वाला है। और एक बंदे का मैंने कमेंट आया कि मैंने आपकी वीडियो देखी, उसके अंदर आपकी एडवाइस पे मैंने गोल्ड उठाया, अब मुझे प्रॉफिट है। बहुत शुक्रिया सर। उस्ताद जी मेरी गल सुनो, मेरी एडवाइस है ऐलान, ठीक है ना? मस्जिद का मौलवी जड़ा है मुअज्जिन है वो अजान देता है, ठीक है? वो हर बंदे नूं गिरवान तो पकड़ के उस्ताद जी मस्जिद ते नहीं वड़दा। मैं एक सजेशन देती है, तुहानूं पसंद आ गई है, तुसी अपने हाथ नाल मूव लईए, तुसी अपना प्रॉफिट कीता है, बहुत शुक्रिया उस्ताद जी। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਜ਼ਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਨਾਫਿਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰੀਫਾਂ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਮਾਲ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ठीक है? ढेरों मोहब्बत ते ढेरों प्यार उस्ताद जी। बस दे रहो, आबाद रहो, मौला दोनों खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।